Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your geography teacher. You are all welcome in today's online classes. Now see the rest part of the peninsular plateau, प्रायद्वीपीय पठार के जो अगले पैराग्राफ पढ़ने हैं उनको हम देखते हैं ध्यान से। आज हमें यहाँ से शुरू करना है। The Western Ghats and the Eastern Ghats mark the western and the eastern edges of the Deccan Plateau respectively. Western Ghats lie parallel to the western coast. They are continuous and can be crossed through passes only. Locate the Thal, Bhor and the Pal Ghats in the physical map of India. मैप ऑफ इंडिया में इसे दर्शाना भी है। चलिए इसे हिंदी में बता देते हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है। वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दो दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। The Western Ghats are higher than the Eastern Ghats. Their average elevation is 900 to 1600 meters as against 600 meters of the Eastern Ghats. The Eastern Ghats stretch from the Mahanadi Valley to the Nigris in the south. The Eastern Ghats are discontinuous and irregular and dissected by rivers draining into the Bay of Bengal. पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित हैं एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। The Western Ghats cause orographic rain by facing the rain bearing moist winds to rise along the western slopes of the Ghats. The Western Ghats are known by different local names. पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकरा कर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। The Western Ghats are known by different local names हो गया। The height of the Western Ghats progressively increases from north to south. The highest peaks include the Naimudi 2695 meters and the Doda Beta 2637 meters. Mahendragiri 1501 meters is the highest peak in the Eastern Ghats. Sevrai Hills and the Javadi Hills are located to the southeast of Eastern Ghats. Locate the famous hill stations of Udag Mandalam, popularly known as Uti, and the Kodai Canal. पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं जैसे अनाईमुड़ी 2.695 मीटर तथा डोडा बेटा 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। उदगा मंडलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है तथा कोडिकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए। One of the distinct features of the peninsular plateau is the black soil area known as Deccan Trap. This is of volcanic origin, hence the rocks are igneous. Volcanic origin के वजह से ये igneous rocks होते हैं। Actually, these rocks have denuded over time and are responsible for the formation of black soil. The Aravalli Hills lie on the western and northwestern margins of the peninsular plateau. These are highly eroded hills
and are found as broken hills. They extend from Gujarat to Delhi in a southwest northeast direction. प्रायद्वीप पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीप पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हैं। अब पढ़ते हैं द इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल। द इंडियन deserts lie towards the western margins of Aravalli Hills. It is an undulating sandy plain covered with sand dunes. This region receives very low rainfall, below 150 mm per year. It has arid climate with low vegetation cover. Streams appear during the rainy season. Soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. Luni is the only large river in this region. इस रीजन में सबसे बड़ी जो नदी है वो लूनी रिवर है। बरकान क्रिसेंट सेप्ट ड्यून्स cover larger areas, but longitudinal dunes become more prominent near the Indo-Pakistan boundary. If you visit जैसलमेर यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बरकान्स। इंडो पाकिस्तान बाउंड्री के पास जाने पे जैसलमेर में ये आपको देखने को मिलता है। चलिए इसको मैं बता देता हूँ। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। किसके पश्चिम में? आप जानते हैं वहाँ अरावली पहाड़ी है और उसके पश्चिम किनारे पे थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टीबों से ढका एक तरंगित मैदान है। यह इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिमी से भी कम वर्षा होती है। यहाँ जो वर्षा का रेट है बहुत कम होता है। डेजर्ट में 150 मिलीमीटर ही होता है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है और इसी के कारण चूँकि वहाँ वर्षा कम होती है, वहाँ की जलवायु एरिड होती है, शुष्क होती है, इसलिए वनस्पति जो वेजिटेशन कहा जाता है वो बहुत कम होता है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। केवल वर्षा ऋतु में आप देखेंगे पानी बहते हुए, लेकिन वर्षा ऋतु खत्म होते ही वो सारा बालू जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है और पानी ऐसा इतना नहीं होता है अन्य जगहों जैसा कि पानी बहते बहते वो जाके समुद्र में गिर जाए। वहाँ का पानी बस वहीं तक सीमित हो जाता है, विलीन हो जाता है बालू में। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है और उस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी नदी है वो लूनी नाम से जानी जाती है। बरकान अर्ध चंद्राकार बालू का टीला है। बरकान क्या है? ये बालू का टीला है और अर्ध चंद्राकार है। का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पे होता है और इस बालू का जो विस्तार है बहुत दूर तक है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप लंबवत टीला देखना चाहते हैं इनके, तो आपको भारत पाकिस्तान सीमा के पास जाना पड़ेगा। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं और इसके लिए जो जैसलमेर में इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है, आप वहाँ जाएंगे तो लंबवत जो बालू के टीले हैं आप वहाँ आसानी से देख सकते हैं। अब जो है हमारा अगला द कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान, इसको पढ़ते हैं। द पेनिसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाई स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग along the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east. The western coast, sandwiched between the Western Ghats and the Arabian Sea, is a narrow plain. It consists of three sections. The northern part of the coast is called the Konkan, Mumbai, Goa, and the central stretch is called the Kannur Plain, while the southern stretch is referred to as Malabar Coast. ये तीन हो गए इनके। The plains along the Bay of Bengal are wide
and lever. In the northern part, it is referred to as the northern Sarkar, while the southern part is known as the Coromandel coast. Large rivers such as Mahanadi, the Godavari, the Krishna, and the Kaveri have formed extensive delta on this coast. Lake Chilika is an important feature along the eastern coast. द कोस्टल प्लेन का मतलब होता है तटीय मैदान। प्रायद्वीप पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। इस पूरे मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा वाले हिस्से को कहते हैं। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिण भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो बड़ी नदियाँ हैं वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये जो नदियाँ हैं इस तट पे विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग द आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी द्वीप समूह। तब तक के लिए धन्यवाद।